तो यस नो भी ना बोल रहा। यस सर पढ़े हैं। ओके राइट। एन इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। लिख लिए। अब आप लिखिए एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0 and a and b are what? Real numbers. This is linear equation in one variable. And what is the variable? X is the variable. What is the variable? X is the variable. आपको 10 में क्या पढ़ना है? Linear equations in two variables. आप लिखिए an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a is not equal to 0 and आप बोल दीजिए आगे a is not equal to 0 and a तो 0 नहीं होगा और क्या 0 नहीं होगा? b not equal to 0. Reason, if a is 0 the equation will reduces to by plus c equal to 0 means it's linear equation in one variable. That is why if b is 0 our equation will be ax plus c equal to 0. Again it's a linear equation in one variable and the variable is x. But if both are not 0 then this is called linear equation in two variables x and y where a, b and c are what? बोलिए what are ABC? ABC are रियल नंबर। Okay, real numbers. Real number means combination of rational and irrational number. Okay. तो आपको ये समझ में आ गया? This is linear equation in one variable. The standard form is ax plus b equal to 0, where a is not equal to 0. And what are a and b? A and b are real numbers. What is the standard form of linear equation in two variables? It is ax plus by plus c equal to 0, where neither a is 0 nor b is 0. And what are ABC? ABC are real numbers. Then this is linear equation in two variables. अब आप लिखिए simultaneous linear equations in two variables. Simultaneous लिख लेंगे simultaneous linear equations in two variables. लिख लेंगे simultaneous. Simultaneous linear equations in two variables. A pair of linear equations in two variables. A pair of linear equations in two variables is said to form a system of simultaneous linear equations in two variables. A pair of linear equations, सीधे सीधे ध्यान में दो. Pair of means कि दो इक्वेशन अगर linear का ले लिया two variables का, then that is said to be simultaneous linear equations in two variables. For example, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is one equation, and another one is a2x b2y plus c2 is equal to 0. This one is another equation. If two equations are there at a time, then this is called simultaneous system of linear equations. Now, in case of linear equation, either in one variable or two variables, how many lines can be drawn? If one equation is given, we can draw how many lines? अब कोई बोल ही नहीं रहा जी. अगर एक इक्वेशन आपको दिया जाए तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? हेलो हेलो, कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? one line. If two equations are there, then how many lines will be there? नाम लेना होगा. कौन कौन है इसमें देखो तो? आयुष, ईशान, मुस्कान, रोमिता और तन्वी. कोई नहीं बोल रहा. How many lines will be there? There will be two lines. Okay, two lines. इतना देर क्यों लग रहा बोलने में? जैसा लग रहा कोई सुन ही नहीं रहा. गलत है ये.
फिर पढ़ाने का क्या फायदा है जब आप कुछ बात ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। So now to solve these two equations, there are two different methods. One is graphical method and another one is algebraic method. In graphical method, we will draw the graph of the both lines. Then they may intersect, they may be parallel or they may coincide. But in case of algebraic methods, there are how many methods? Substitution, elimination and cross multiplication. Three methods are there in algebra to solve pair of linear equations. One is substitution, other is elimination, and last one is cross multiplication. Very good. आवाज हमको सबके सुनाई देनी चाहिए, तभी तक हम समझेंगे आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मान लेंगे सो गए हैं. If two equations are there, we can solve these two equations by two different methods. One is algebraic method and another one is graphical method. In case of graph, we will draw graphical method, we will draw the graph of the lines, and depending on the graph, we can decide whether there is unique solution, no solution, or infinite number of solutions. Another method is algebraic method. In that particular method, three methods are there. नेम बता सकते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट बोलो एलिमिनेशन, एंड अनदर वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो सपोज हम लोग अभी बात करेंगे ग्राफिकल मेथड. वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ दिस टू लाइंस इन अ प्लेन. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? बोलो, अगर दोनों लाइन हम ड्रॉ करें एक ही प्लेन में, एक ही ग्राफ पेपर में, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? ये कौन सा लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइन. सेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस कि या तो दोनों क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड वन इज पैरेलल लाइंस. कैसा हो गया? पैरेलल. लिख रहा हो तू लोग या ना लिख रहा है? लिख रहे हैं सर. और नेक्स्ट लिखो थर्ड केसेस, बोथ लाइंस आर ऑन द सेम लाइन. इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस. कौन साइड कर गया? तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट. कौन साइड करेगा? एक ही लाइन, दोनों लाइन एक ही पे है. अब देखो कंफ्यूजन क्या आता है. these two are parallel, these two are parallel or not? आप बताइए. इसको तो हम लोग पैरेलल लाइंस बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस. ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं? बोलो. इसको तो हम लोग बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग. these two are parallel and these two are coincident. This is with respect to the solution, but by nature these are intersecting and this one is parallel and this one is also parallel. इसको ध्यान देना तुम लोग, बहुत कंफ्यूजन होता है +2 में जाके. ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. क्या कंडीशन है पैरेलल लाइंस का? बोलो, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कांस्टेंट. यही ना डेफिनेशन पैरेलल का. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउसएवर दे आर एक्सटेंडेड. तो अगर हम डिस्टेंस डिक्रीज करते जाएं तो वो पैरेलल रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस और नो? जल्दी बोलो देख करके इस कंडीशन. अगर ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? ये पैरेलल हैं? पैरेलल है. पैरेलल हैं. तो when they will coincide, again the nature is the nature of parallel lines. But in your book or up to standard 10, it is given on the basis of solution. Intersecting lines, unique solution. Parallel lines, no solution. Reason, there is no point which is common to both. And this is coincident lines, means every point on first line is also there on the second line. That's why this is called the condition of coincident lines. But keep in mind, these lines are also parallel. The distance between them is 0. Then what is the problem? The problem is every point on the first line is also there on the second line. That's why there are infinite number of solutions. Clear? Is it clear? Clear sir. Yes, sir. Yes, sir. In a plane,
if we are drawing two lines, then only two possibilities are there. Either they will be intersecting or parallel. Lines are either intersecting or parallel. In case of parallel, two conditions are there. Either the distance between them is something, and if distance between them is nothing, means zero, then they are said to be coincident. But by nature, this is parallel, case of parallelism, and this is also parallel. Clear? Is it clear? किसी प्लेन में अगर दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो दो ही केस बनता है, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल। क्लियर है ये? कोई बोल ना रहा, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ओके, और गर्ल्स ग्रुप सो गया? आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, बट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, if lines are intersecting, then how many points are common? Intersecting lines की केस में कितने points common मिले? बोलो, कितने points में intersect किए? 1 point. That's why this is the case of unique solution. Note कर लिए? This is case of unique solution. Unique means there is only 1 point which is common to both. In case of parallel lines, is there any point which is common to both? क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइन पे है? बोलो। नो सर, No, एक भी sir. कॉमन पॉइंट नहीं है सर। So that's why it is called no solution. इसमें हम लोग लिखे यूनिक सॉल्यूशन, only one point is common, that is unique. और यहाँ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन। आप बोलिए कोइंसिडेंट लाइंस में कितने पॉइंट्स कॉमन है? Infinite. इनफाइनाइट, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लिप्स। Means every point on first line is also there on the second line. That's why this is the case of infinite number of solutions. This is intersecting, this is parallel, and this is coincident. नोट कर लिया आप लोग? बोलो, इसको नोट कर लिए? कर लिए सर। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए consistent और inconsistent, दो टर्म यूज होता है। Consistent, a pair of linear equations, are said to be consistent. A pair of linear equations are said to be consistent if they have at least one solution. At least one solution. A pair of linear equations are said to be consistent if they have at least one solution. तो at least one solution में कौन कौन आएगा? बोलो, कौन कौन सा केस आएगा at least one में? यूनिक और कौन सा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ये किसका केस है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बताएंगे आप? कैसा होगा? कैसा ग्राफ होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे लाइंस होंगे? बोलो, ये कैसा है? Coincide. वेरी गुड। Lines are coincident lines, coincide कर गए। So every point on first is also there on second. That's why there are infinite number of solutions. और ये यूनिक हो गया। दूसरा था inconsistent. Inconsistent, a pair of linear equations, लिख पा रहे हैं ना आप लोग? लिख पा रहे हैं ना? Yes, sir. देखो, a pair of linear equations are said to be inconsistent if there is no solution. A pair of linear equations are said to be inconsistent if there is no solution. तो आप बताएंगे नो सॉल्यूशन कब होगा? किस केस में?
पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, वेरी गुड। ये केस है नो सॉल्यूशन का, जब लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल। Parallel lines is the case of no solution, means system is said to be inconsistent. Clear? Is it clear? इनकॉन्सिडेंट सर, इसका डिफिनेशन फिर से रिपीट कीजिए सर। इसका inconsistent, यस सर। देखो, a pair of linear equations are said to be inconsistent if there is no solution. A pair of linear equations are said to be inconsistent if there is no solution. If there is no solution. ये जो भी हम बता रहे हैं, this is in the case of plane, but in case, नोट कर लिए? यस सर। अब आप आ जाइए स्पेस में। प्लेन में तो हुआ कि ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल, बट इन केस ऑफ स्पेस ध्यान से देखना, दिस इज द केस ऑफ, बोलिए किसका केस है ये, किसका केस है ये, नो सॉल्यूशन का। पैरेलल लाइंस, दिस Yes, इज केस sir. ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बारे में जरा देखो तो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे अगर स्पेस में है तो, ये पैरेलल है, ये क्या पैरेलल है, देख लो, ये पैरेलल नहीं ना है, No, sir. इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब ये टच करेगा तब ना, ये ऊपर ही रह गया, ये कौन सा केस हो गया, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो लिखिए इस्क्यू लाइंस, नाम आपको जानना चाहिए, टू लाइंस इन स्पेस, two lines in space which are neither parallel nor intersecting, neither parallel nor intersecting are said to be skew lines, SKEW, skew lines। तो आप जो एरोप्लेन चलती है ना स्पेस में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है, नीचे से दिखाई देता है टकरा जाएगा, लेकिन दोनों टक्कर मारता है ना, उसमें क्या रहता है बोलो, दोनों के बीच का डिस्टेंस रहता है। हम लोग नीचे से देखते हैं, लगता है दोनों टक्कर मार देगा, लेकिन बिल्कुल टक्कर नहीं मारेगा। रीजन, दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है ना। स्पेस में जब आप चलेंगे, प्लेन में तो दो ही केस है, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, बट इन केस ऑफ स्पेस देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। So that is the case of what? This type of lines, skew lines. Clear है? यस सर। चलिए आगे लिखिए, solution of, solution लिखिए ना, सिर्फ solution। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का क्या है, ax plus by plus c equal to 0. What is the solution? So x equal to alpha and y is equal to beta is solution of the equation, कौन सा इक्वेशन, ax plus by plus c equal to 0 if a alpha plus b beta plus c equal to 0। अगर x की जगह पे अल्फा ले लें, y को बीटा ले लें, तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, इट मींस कि अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन। तो x equal to alpha and y equal to beta is the solution of the equation this if a alpha plus b beta plus c is equal to 0। अब आप बताइए किसी लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं,
सब यही सोच रहा दूसरा बोलेगा, बोल कोई न रहा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस लाइन? infinite. इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? सिंगल लाइन के लिए कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। जितने भी पॉइंट्स इसके उतने सॉल्यूशंस होंगे। बट इफ टू लाइंस आर गिवन, ये तो क्लियर है ना? एक Yes, इक्वेशन sir. दिया है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। जो भी पॉइंट चेंज होगा सब इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इस लाइन पे है। lines are given a1x, b1y, c1 equal to 0, a2x, b2y plus c2 equal to 0, and we are drawing the graph in a plane. Then बोलो कितनी possibilities हो गए? 1, 2, 3। ये कौन सा केस है? फर्स्ट। सब लोग बोलिए, ये कौन सा केस है? Intersecting line. Intersecting lines. Consistent या inconsistent? Consistent. This is consistent. This is case of parallel lines. कैसा लाइन है? पैरेलल। इसमें सॉल्यूशन है या नहीं है? No, sir, solution नहीं है. तो कौन सा केस हुआ ये? नो सॉल्यूशन। Inconsistent. इनकॉन्सिस्टेंट। वेरी गुड। और इस केस को बताइए। इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर, Coincidency line है, sir. देन सिस्टम इज सेड टू बी consistent. तो फर्स्ट और थर्ड consistent और बीच वाला क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर? Yes, sir. बोलो, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई बोल ना रहा ठीक से जी। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक लाइन का ड्रॉ करेंगे तब तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बट दो का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा। इंटरसेक्टिंग आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। पैरेलल आएगा, नो पॉइंट इज कॉमन, दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट आएगा, देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ। जब किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, x plus y equal to 0, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप लोग? जल्दी बोलो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितना मिनिमम पॉइंट्स चाहिए? किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट जरूरी है? 2, 2। तो चलिए हम पहले ले लिए x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू बताएंगे आप? -1, वेरी गुड। y इक्वल टू -1। एक और वैल्यू बताओ, क्या ले ले? एक और वैल्यू बताओ। x का वैल्यू, एक तो 1 लिए, y आ गया यार -1। x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा. वेरी गुड। x को 2 लिए, तो ऐसा कितना पॉइंट सब ले सकते हैं? ये बताओ, ऐसा कितना पॉइंट हम ले सकते हैं? इनफाइनाइट। Infinite, sir. इनफाइनाइट। वेरी गुड। चलिए अब ग्राफ पे आ जाइए आप। अगर ये लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये हो गया x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, यही होता है ना? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैं ओरिजिन। क्या ये? ओरिजिन। ये हो गया 1, 2, 3, 4। इस साइड में ये -1। ग्राफ देखे हो आप लोग? Yes, sir. पर देखे हुए हैं? कल लेके आएंगे स्कूल। कल हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्कूल में, ऑफलाइन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। अब बोलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1 -1। एक पॉइंट मिल गया और दूसरा मिल गया 2 -2। क्या आप बताएंगे 1 -1 किस क्वाड्रेंट में होगा? 4, 4। वेरी गुड। तो 1 और देन -1, एक पॉइंट मिल गया 1 -1। नेक्स्ट इज 2 -2, ये मिल गया 2 -2। दोनों को ज्वाइन कर दें, ये लाइन बनेगा ना? किस लाइन का इक्वेशन है? x plus y equal to 0, उसका ग्राफ हो गया। आप बना लेंगे?
यस सर, बना लेंगे। ड्रॉ करो, रफ पे भी रफ ही बनाओ, कल ले आना ग्राफ पे तो हम लोग सामने कर लेंगे। If one line is there is no problem, but if two lines are there, then there will be two lines, और टू लाइंस जब ड्रॉ करेंगे किसी पेपर में प्लेन में तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग होगा तो कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल होगा तो बोलो, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और अगर कोइंसाइड कर जाए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए। चलो हम लोग दो लाइन का कोशिश करते हैं। इरेज कर दे इसको। यस सर। चलो इरेज कर देते हैं। आप लोग चलिए, आप लोग भी लिखिए। दो लाइन हम लोग लेते हैं और दोनों लाइन से देते हैं क्वेश्चन जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन सा नेचर शो कर रहा। देखें कि क्वेश्चन, बोलो, कोई बोल ना रहा, इसका मतलब ग्राफ नहीं ड्रॉ करना चाहते। x प्लस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन लिख लो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। 3x माइनस 2y इक्वल टू, आपको दिया गया सॉल्व ग्राफिकली, तो मतलब आप पता कीजिए यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो है। यूनिक है तब तो एक आंसर दे पाएंगे, नो है तो कुछ बताने ही नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन बन गया। तो अब आप बताइए फर्स्ट वाले के लिए हम अगर ले लें y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो सही है ना? फर्स्ट लाइन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो सही है ना ये? यस सर। यस सर। चलिए आप दो पॉइंट बताइए, x और y, क्या क्या वैल्यू है x का और उसके लिए y क्या मिलेगा? बोलो, x का वैल्यू क्या ले लें? कितना सारा पॉइंट्स पॉसिबल है, कोई तो बोलो। x इक्वल टू 1 ले लिए, चलो तो y का वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल टू 1 लिए वैल्यू क्या आएगा? 2। x को 2 ले लीजिए तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। एक पॉइंट मिल गया 1 2 और दूसरा पॉइंट मिल गया 2 1। अब हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं इसको, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x o x डैश, y o y डैश, 1 2 1 1 2 दिया गया, 2 1 1 2 1, यही होगा ना? जल्दी बोलो, यस सर, नो सर में जवाब दो। सही है? ये बनेगा ना ग्राफ हम लोगों का? यस सर। अब इसके लिए भी दो पॉइंट लेना है, क्या ले लिया जाए? देखो तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, क्या ये सही है? 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 बाई 2, काम चल जाएगा इससे। अब आप बताइए क्या है वैल्यू? x का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 1 मिल गया। नेक्स्ट बताओ तो तू लोग, नेक्स्ट बताओ क्या लिया जाए? पॉइंट देखो, एक तो हम लेके बताया आपको, x का वैल्यू 2 लिए तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2 और 2 बाई 2 1 आ गया। एक पॉइंट आप बता दीजिए कौन सा ले लिया जाए? x का वैल्यू 4 ले लें, चलिए 4 ले ले रहा है। x का वैल्यू 4 ले लिए तो y का वैल्यू बताओ। x को 4 लिए तो 3 12 माइनस 4 8 और 8 बाई 2 4 आएगा। यस सर। तो हमको दो पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिला 2 1 और दूसरा पॉइंट मिल गया 4 4, तो ये तो 2 1 यही है।
2 1 को सेम पॉइंट है, दूसरा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप बोलिए कैसा ग्राफ बन गया ये, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट? ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया कैसा बना? इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। Solution. और वो सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किए that is the solution of the given system of linear equations. x equal to 2 and y equal to 1 is the solution. Okay, clear? ये क्लियर है? Yes. ओके ओके, थैंक यू। कल आप ग्राफ पेपर लेके आएंगे स्कूल, और दोस्तों भी बोल देंगे कल ग्राफ लेके आना है, हम लोग कल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।